Hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. We let the students come. They are coming in. Let us start. We did in the last class. I mean, the class before. Last class was Viva. In the last class, we did the uh, symmetrical fault analysis using MATLAB simulation. There is the MATLAB simulation of symmetrical faults. Today, we'll do the same. I mean, not the same. We'll do MATLAB simulations of different types of short circuit faults in the electrical networks. See the various types that we have. So I think you have studied the theory part of the faults of all the type of faults. So, sir, Pankaj sir, Yes, sir. sir, should we start the simulation right away, or do you need to tell the theory anything? They have studied the theory, I think. Only with 9 students. They are coming in. They are very slow. बोलने के बाद बहुत लेट करके घुसता है ये लोग. The distance is very long, na. They're traveling from a very long place. बोलने के That's बाद why बहुत देर करके ज्वाइन करता है सब. they are traveling from a very long place. That's why I think we need time to join. So how many students are there? 1, 2, 3, 4, Nine. 5, 6, 7, 8, 9. Nine. Except me, only 9 students are present in the meeting. Yeah. That means, what about the others? I've told the students they don't take the lab seriously. The maximum attendance is like 15 or 16. Yes, Told- yes. That will be replicated. That will be completely replicated from the marks of 6 semesters. Sir, don't worry. I've told them repeatedly don't ignore the In their performance will be replicated in this semester. Don't worry. Their performance will automatically will be replicated in this semester in their academic marks, because all of these students know that if the exams were not conducted, then their marks, their CGPA is entirely completely dependent on the internal marks. If the university exams will be there, then no problem. Then it is good for all of us. But if the university exams is not conducted, like they are promoted, they are giving the fifth semester, fourth semester, promoted to fifth semester, then give the form fill up of fifth semester, then it is completely dependent on the internal marks, their performance, their CGPA. So that will be replicated automatically. The students, those who are performing properly, they will be awarded, and those who are not performing properly, they will simply not be awarded. That is a very common concept for this semester, and I have communicated this several times to everybody. all of the students And that is told us, already recorded. yes, sir, all of the That is students also recorded. told us that we have to start the lab earlier so that they can. There is no internet. Sir, problem. sir, I am not. Sir, is the students can join automatically? Yes, sir, because I have done I am it. the host and I am not joining. Yes, sir, I have. They can join automatically. Yes, sir. Yes, sir. I have disabled the waiting room. Okay, that is good. No problem. That is good. But sometimes some unknown persons can enter the meeting. That's not good. Yes, sir, I am looking after that. Okay. Okay, so I'm sharing the screen. Is my screen visible? Yes, sir. I think my screen is visible. Yes, sir, visible. Yes. Okay. So today we will conduct the experiment of the different types of faults. Short circuit fault. Different types of short circuit faults. Because as the students, as you all know, that the faults can be two types, in which one is called the open circuit fault or series fault,
and another one is called the short circuit fault or shunt fault. So short circuit fault, as you know, can be categorized into two types. Basic concept you all know that is symmetrical. That is symmetrical and unsymmetrical. Symmetrical short circuit fault, SCF, in which we can have number one to be three-phase fault, or number two to be three-phase to ground fault. On the other hand, from the view of the unsymmetrical fault analysis, from the view of the unsymmetrical short circuit fault, it can be categorized into different types. It can be categorized into different types. It can be categorized as a line to ground fault. It can be categorized as double line fault. It can be categorized as double line to ground fault. Okay. So these are the 5 types of short circuit fault available with us in any electrical power system networks, in which it can be symmetrical short circuit fault or unsymmetrical short circuit fault. So we all know in the case of short circuit faults, there is a rise in current and decay of voltage. That is, whenever a short circuit fault occurs, the current for the particular instant of time, the current will increase up to a very high extent, and it will basically decay in a transient way. And we had already discussed what are the different transient times called subtransient period, transient period, and steady state period. That is, the current is definitely increased if we talk about short circuit fault. Now, from the view of symmetrical short circuit fault, we can have two types of fault: three-phase to ground fault, three-phase fault. And in the case of unsymmetrical short circuit fault, we can have line to ground fault, line to line fault. That is also called double line fault, or it can be double line to ground fault. Okay. So I think the students had know the different things that we have to study in the fault analysis of the respective faults that are mentioned here. So I would like to ask a question to a person. Suppose ताली बंसाली. Yes, sir. तुम बता सकते हो कि हम लोग जब एनालिसिस तुम लोग जब पढ़े हो, तो फॉल्ट एनालिसिस जैसे अगर हम थ्री फेज फॉल्ट का बात करते हैं, या फिर थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट का बात करते हैं, या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का बात करते हैं, तो उसमें हम लोग बेसिकली किस चीज को, जैसे मान लो हमको एक टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस ऑन पावर सिस्टम नेटवर्क, तो उस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, या क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा? कहां से स्टार्ट किए थे और कहां तक गए थे? मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि थ्री फेज फॉल्ट, अगर तुम एग्जाम में अगर आए कि डिस्क्राइब थ्री फेज फॉल्ट ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क, तो तुम उसमें क्या क्या चीज लिखोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? Sir. तालिबान को पता नहीं है शायद, नो प्रॉब्लम. व्हाट अबाउट संतोष कुमार महतो? यस सर. तुम बता सकते हो? सर क्या सर, एक बार फिर से सर. देखो, क्वेश्चन को सबको सुन लो, हर बच्चे से अलग अलग क्वेश्चन नहीं ना पूछेंगे, कॉमन क्वेश्चन है. सर आवाज कट गई सर. अगर एग्जाम में ये सवाल आए, डिस्क्राइब थ्री फेज फॉल्ट, अगर एग्जाम में मान लो 40 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब थ्री फेज फॉल्ट, तो उसमें तुम किस किस चीज को डिस्क्राइब करोगे? सर जिस तरह से आप मतलब बताएं, इसमें दो तरह का फॉल्ट होता है. नहीं, तो हम क्या बताएं वो हम नहीं पूछे, हम पूछे कि तुम क्या लिखोगे एग्जाम में, क्या लिखोगे, तुम्हारा इनपुट क्या है, हम पूछे हैं. जितना फॉल्ट होता है सर, सारा मतलब जो होता है, दोनों टाइप में पहले डिस्क्राइब करेंगे, फिर
फिर उसके अंदर में जो जितना सारा फॉल्ट होता है अरे उसको तुम डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट का डिस्कस करेगा। तुमको तो 3 फेज फॉल्ट के बारे में पूछा गया है, तुमको 3 फेज फॉल्ट के बारे में पूछा गया है, तो तुम 3 फेज फॉल्ट के बारे में बताएगा या सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में बताएगा? हम तो ये पूछ रहे हैं कि 3 फेज फॉल्ट का अगर हमको एग्जाम में दिया जाए तो उसमें हम क्या क्या चीज उसमें लिखेंगे? नहीं बता सकता है। अभिजीत कुमार, सर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट निकालना हो, इम्पीडेंस सर, सबसे उसके पहले बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं नॉर्मली? सर जीरो सीक्वेंस निकालना है सर। पहले तो उसका हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। यस यस सर, उस बिगिनिंग से यस सर, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग जनरल अजम्पशंस लेंगे कि अगर 3 फेज फॉल्ट होगा तो तीनों फेज का करंट आईए आईबी आईसी तीनों का वैल्यू, अगर 3 फेज फॉल्ट है तो सेम होगा। अगर 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो आईएफ का वैल्यू हो जाएगा आईए प्लस आईबी प्लस आईसी। क्या ये सब जनरल अजम्पशंस हम लोग करेंगे? जनरल अजम्पशंस करने के बाद हम उसको उस मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, और मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस फॉल्ट करंट का वैल्यू निकालेंगे। याद है? पॉजिटिव सीक्वेंस फॉल्ट Yes, करंट sir. का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग एक्चुअल फॉल्ट करंट को पॉजिटिव सीक्वेंस फॉल्ट करंट के साथ कोरिलेट करेंगे कि एक्चुअल फॉल्ट करंट क्या होता है। जैसे 3 फेज फॉल्ट में एक्चुअल फॉल्ट करंट होता है 3IA1। उसके बाद हम IA1 करेंगे, तब जाके एक्चुअल फॉल्ट करंट निकलेगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में क्या करते हैं? सर पर यूनिट निकालना रहता है। लास्ट में हम लोग उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं। याद है थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता था? यस सर, ओपन सर्किट वोल्टेज। थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं, थेवेनिन इक्विवेलेंट मतलब हम लोग उसका डायग्राम बनाते थे जिसमें हम लोग सारे कंपोनेंट जो है, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस करंट, उस सबको हम लोग एक थेवेनिन इक्विवेलेंट की तरह उसको बनाते थे लास्ट में एकदम। तुम लोग को पढ़ेगा तो याद रहेगा, तुम लोग कुछ पढ़ भी नहीं करता, कहां से याद रहेगा? किस तरह से बनाते थे याद है? यस सर, फॉर्मूला रहता था सर उसका पॉजिटिव तो सीक्वेंस फिर निकालने का। इस तरह से एक होता था VA1, इस तरह से हम लोग निकालते, उसको हम लोग कहते थे थेवेनिन इक्विवेलेंट। लास्ट में करते थे एकदम। और उस थेवेनिन इक्विवेलेंट जो बनता था ना, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनता था फॉल्ट करंट का इक्वेशन के आधार पर बनता था। ओके, तो ये तुम लोग का स्थिति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट लेंगे। तुम लोग के पिछले क्लास में आयन सर एक नॉर्मल फॉल्ट के बारे में बतलाए थे, तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी सर्किट में 3 फेज फॉल्ट होता है तो क्या होता है, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड होता है तो क्या होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है तो क्या होता है, और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम एक सबसे पहले मैटलैब ओपन करेंगे, और मैटलैब ओपन करने के बाद हम एक मॉडल ओपन करेंगे, ठीक है। मॉडल ओपन करने के बाद लोग यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर्स लेके आएंगे। जैसे हमको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब चीज लेके आएंगे। जैसे स्कोप लेके आएंगे, नॉर्मल जो हम लोग को लगता है, सिग्नल राउटिंग से फ्रॉम और गो टू ब्लॉक ला सकते हैं। उसके बाद सोर्सेस से नहीं, सोर्सेस का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम जाते हैं सिम पावर सिस्टम में। सिम पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सोर्स में जाके हम एक वोल्टेज सोर्स लेके आ सकते हैं। हमको 3 फेज चाहिए तो हम 3 वोल्टेज सोर्स, उसको हम लोग 3 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुम लोग को बतलाए थे।
उसके बाद एलिमेंट्स में जा सकते हैं, एलिमेंट्स में जाके हम लोड ले सकते हैं, रेजिस्टेंस आरएलसी का कुछ भी ले सकते हैं। मेजरमेंट में जाके हम 3 फेज वीआई मेजरमेंट का एक ब्लॉक ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉल्ट करेंगे तो फॉल्ट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक फॉल्ट का ये ब्लॉक है, उसको ला सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले एक 3 फेज सोर्स बनाएंगे। तुम लोग को हम बताए हैं, एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि हम लोग 3 फेज सोर्स कैसे बनाते हैं। 3 फेज सोर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे और ये बन गया हमारा 3 फेज सोर्स। अभी हम पहला वाला में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग फेज फ्रीक्वेंसी को 50 कर दिए। दूसरे वाले में हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, इसमें हम लोग फेज डिग्री को कर देंगे -120, फ्रीक्वेंसी 50, और तीसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से +120, फ्रीक्वेंसी 50। तो ये बन गया हमारा 3 फेज सोर्स। अब क्या करते हैं, 3 फेज सोर्स को हम एक वीआई मेजरमेंट में लेके आते हैं, जिससे कि हमको इन वोल्टेज करंट को मेजर करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। वी कैन इजीली कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट। उसके बाद ये एक 3 फेज सप्लाई है, तो हम एक 3 फेज लोड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसको हम रेजिस्टिव लोड में कन्वर्ट करते हैं विद रेजिस्टेंस 25 ओम्स। तो रेजिस्टेंस में तीनों बैलेंस्ड रेजिस्टेंस है 25 ओम्स का। और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक स्टार कनेक्शन का ये कर सकते हैं इस तरह से। अगर इसको हम कॉमन कर देंगे तो ये स्टार कनेक्शन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा अभी हमको एक अर्थ पॉइंट चाहिए अर्थ इन करने के लिए, और अर्थ पॉइंट के लिए हमको ये ग्राउंड पॉइंट मिल जाएगा। 2 ग्राउंड पॉइंट ले लेंगे, एक ग्राउंड पॉइंट को हम इसके साथ लगा देंगे तो ये बन जाएगा रेफरेंस बस बेसिकली, जो इसको हम लोग न्यूट्रल बस कहते हैं। अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस सिस्टम को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर देते हैं जैसे कि दिया हुआ है। सिंपल एक 3 फेज सप्लाई लिए हैं और एक 3 फेज लोड लिए हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि सिग्नल राउटिंग से 2 फ्रॉम ब्लॉक लेके आते हैं और 2 गो टू ब्लॉक लेके आते हैं। तो एक पहला गो टू ब्लॉक को यहाँ लगा दिए, दूसरा गो टू ब्लॉक को यहाँ लगा दिए। एक से हम कर दिए VSC को सेंस, एक से हम कर दिए IABC को सेंस, और स्कोप को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, और स्कोप का 2 पैरामीटर हम कर दिए, क्योंकि हमको सप्लाई का 2 पैरामीटर मेजर करना है, करंट और वोल्टेज। इसको सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल SCF शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओके, नाउ अभी इसको हम राउटिंग कर देते हैं, सिग्नल राउटिंग को वाला कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 को कनेक्ट करती है इस तरह से। तो फ्रॉम का जो नाम है A, ओके, और फ्रॉम 1 का नाम दे देते हैं B। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वोल्टेज सेंस करना है,
तो ये ए के साथ कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा वाला हमको सेंस करना है करंट, इसको हम बी के साथ टैग कर दिए, ठीक है। अभी ये हमारा फॉल्ट का ब्लॉक है। जो हम काम करेंगे आज वाला एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है। जैसे कि हम लोग इससे पहले जो रेक्टिफायर वगैरह बनाए थे उसमें बहुत कुछ करना पड़ा था, फायरिंग एंगल चेंज करना पड़ा था, उतना यहाँ पे करने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को ए फेस के साथ लगाएंगे, बी को बी फेस के साथ लगाएंगे और सी को सी फेस के साथ लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे थ्री फेज वीआई मेजरमेंट में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे फेस टू ग्राउंड ऑलरेडी किया हुआ है तो उसमें दिक्कत नहीं है, ओके। अभी हम लोग का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 100 वोल्ट 0 50 हर्ट्ज, ओके। 100 वोल्ट पीक 1 -120 50 हर्ट्ज, ओके। 100 वोल्ट 120 50 यानी सिमेट्रिकल सप्लाई हो गया। और लोड भी हम लोग का लगभग बैलेंस्ड ही है, लोड इज बैलेंस्ड, स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड, ओके। और हम लाइन में एक फॉल्ट किए हैं, ठीक है। लाइन में हम लोग क्या किए, एक फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट ऑकर किए। अभी इस थ्री फेज फॉल्ट बेसिकली ये थ्री फेज फॉल्ट नहीं है, इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट करा सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो तुम देखो इसका फॉल्ट का पैरामीटर सब खुलेगा, डिफरेंट फॉल्ट पैरामीटर्स। जैसे क्या क्या है, फेज ए फॉल्ट में हम टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। फेज बी फॉल्ट में टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। फेज सी फॉल्ट में टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। एक फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, फॉल्ट रेजिस्टेंस ओम्स में। एक ग्राउंड फॉल्ट का टिक किया हुआ है। ग्राउंड फॉल्ट का मतलब वो थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में आ सकता है, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आ सकता है, या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आ सकता है। और ग्राउंड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन टाइम जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन टाइम देखो 1/60 और 5/60 है। 1/60 और 5/60 का मतलब, इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में फॉल्ट ऑकर किया है, इस पर्टिकुलर टाइम में फॉल्ट ऑकर किया है, मतलब 1/60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/60? ओके, यहाँ पे हम लोग 50 कर देंगे बिकॉज वी आर टेकिंग द फ्रीक्वेंसी 50। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले 50 कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/50? द वैल्यू ऑफ 1/50 इज 0.02, यानी 0.02 सेकंड से लेके ये 5/50 यानी 0.1, यानी 0.02 सेकंड पर फॉल्ट स्टार्ट होगा और 0.1 सेकंड पर फॉल्ट खत्म हो जाएगा। ट्रांजिशन टाइम का ये मतलब हुआ 1/50 और 5/50। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 1/50 से 2/50 कर सकते हैं, 1/50 से 4/50 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रिमाइंड दैट कि सबसे पहला वाला जो वैल्यू होगा वो हो गया फॉल्ट का ऑकरिंग टाइम, और लास्ट वाला जो वैल्यू है वो हो गया फॉल्ट का एंडिंग टाइम। उसके बाद स्नोबल रेजिस्टेंस है, स्नोबल कैपेसिटेंस है, वो सब चीज है, वो सब दूसरा चीज है, ठीक है। अभी हम लोग सपोज जस्ट वेट, लेट मी चेक वन थिंग। तो इसका हम लोग एक ये किए थे इससे पहले, किसमें हम किए थे इसका डेमो, फॉल्ट वाले में किए थे, फॉल्ट पीएस। इसमें कितना वैल्यू लिए थे, 5, ये 0.01 ही था, ओके। इसका सब वैल्यू हम कर देते हैं 5, और इसमें हम इसका जो टाइमिंग है इसका कर देते हैं 1/50 से लेके 1/50 मतलब 0.02 से लेके 2/50। 2/50 का मतलब हो गया 0.04, यानी 0.02 सेकंड से लेके 0.04 सेकंड तक हमारा फॉल्ट ऑकर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉल्ट करा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, देखो ए फेज भी टिक किया हुआ है, बी फेज भी टिक किया हुआ है, सी फेज भी टिक किया हुआ है, और ग्राउंड फॉल्ट वाला जो पॉइंट है वो भी टिक किया हुआ है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट।
और 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट का हमारा कंसेप्ट क्या था कि 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट जब होगा उस समय सर्किट का तीनों फेज का करंट इंक्रीज करेगा, तीनों फेज का करंट इंक्रीज करेगा और फॉल्ट करंट जो होगा वो तीनों फेज में, अगर हमारा लोड बैलेंस्ड है और सिमेट्रिकल सप्लाई है तो फॉल्ट करंट तीनों फेज में सेम होगा, isn't it? फॉल्ट करंट तीनों फेज में सेम होगा 3 फेज टू, ठीक है। और वो फॉल्ट करंट उस समय तक सर्किट ऑकर करेगा जिस समय तक फॉल्ट क्लियरिंग नहीं होता है, मतलब जब तक फॉल्ट रहेगा तब तक उतना, मतलब नॉर्मली क्या होगा कि सबसे पहले करंट का वैल्यू एक हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू होगा, मतलब नॉर्मल करंट होगा। जब फॉल्ट हो जाएगा तो करंट का वैल्यू बहुत अचानक से बढ़ जाएगा, उसके बाद वो जब फॉल्ट क्लियर हो जाएगा वो अगेन नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग को आंसर पिछले क्लास में कराए थे, इसको हम रन करेंगे और रन करने के बाद हम स्कोप में डबल क्लिक करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज और करंट का किस तरह का वेवफॉर्म मिला है। तुम देख सकते हो वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है वो लगभग 100 के आसपास है और जो हमारा करंट है नॉर्मल करंट वो 4 के आसपास है, बिकॉज 100/25 इज 4। और यहाँ पे तुम देखो 0.02 से लेके 0.04 फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, लेकिन वो करंट स्टेबल होते होते 0.05 में आके स्टेबल हुआ है लगभग, मतलब जिस समय फॉल्ट क्लियर होता है उसके कुछ, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। फॉल्ट स्टार्ट होता है उसके बाद वो करंट धीरे धीरे डीके करता है, एकाएक डीके नहीं करता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। इसीलिए कुछ समय के बाद वो फॉल्ट क्लियर होता है। जैसे अगर यहाँ पे फॉल्ट का टाइमिंग 0.04 से लेके 0.02 से लेके 0.04 है तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम फॉल्ट टाइमिंग बढ़ा देंगे, सपोज हम कर देते हैं पहले 1/50 से लेके 2/50 था, अगर हम 1/50 से लेके 3/50 कर देंगे, 3/50 मतलब कितना हो गया 0.06, तो तुम देखोगे ये 0.02 से लेके 0.06 तक ये फॉल्ट ऑकर करेगा, ठीक है। देखते हैं उसको करके। यहाँ पे हम क्या करते हैं 2/50 के जगह पे कर देते हैं 3/50, मतलब वो फॉल्ट स्टार्ट होगा 1/50 पे, यानी 0.02 पे स्टार्ट होगा और वो 0.06 तक ऑकर करेगा। देखो देख सकते हो, और वो 0.06 तक ऑकर किया है, उसके बाद आके वो स्टेबल हुआ है। मुताबिक हम लोग उसका पैरामीटर देंगे, वैसा वैसा हमको आउटपुट मिलेगा। ये हो गया 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये तुम लोग का पिछले इसको हम 3 फेज, अगर इसको हम 3 फेज फॉल्ट करना चाहेंगे तो बताओ तुमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट को कन्वर्ट करना करके 3 फेज फॉल्ट करना चाहेंगे उस समय हमको क्या करना पड़ेगा? सर ग्राउंड वाले को अनटिक कर, ग्राउंड वाले को हटा अनटिक कर देंगे, सिंपली ग्राउंड वाले फॉल्ट को अनटिक कर देंगे। देखो ग्राउंड वाले फॉल्ट को जब भी हम अनटिक करेंगे ऑटोमेटिकली ग्राउंड रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां से हट जाएगा, यानी ये हो गया 3 फेज फॉल्ट। अब हम 3 फेज फॉल्ट करेंगे, उसके बाद उसको रन करेंगे तो वो 3 फेज फॉल्ट वहां होगा, मतलब यहाँ पे the circuit will treat that in the circuit a 3 phase fault occurs, और तुम अगर स्कोप में क्लिक करोगे तो अकॉर्डिंगली तुमको उसका वेवफॉर्म मिलेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम फॉल्ट करंट का पीक वैल्यू कितना आया है। मैक्सिमम फॉल्ट करंट का पीक वैल्यू आया है 24 एम्पियर्स, 24 एम्पियर्स आया है। नॉर्मल करंट कितना है? नॉर्मल करंट का वैल्यू यहाँ पे है 4 एम्पियर, और फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना आया है? फॉल्ट करंट का वैल्यू इस समय नॉर्मली आया है अराउंड 24 एम्पियर पीक वैल्यू। ओके,
ये हो गया 3 फेज फॉल्ट। अगर हमको, अब हम अनसिमेट्रिकल में आते हैं। अनसिमेट्रिकल में सबसे पहला फॉल्ट क्या है? अनसिमेट्रिकल में सबसे पहला सर। फॉल्ट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। हाँ बोलो। सर वो बोल रहे थे सर, जो वेवफॉर्म जो था तो सर प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट सर दोनों सेम क्यों दिख रहा है सर? कहाँ पे? सर वो जो सर वेवफॉर्म जो मिला था सर हम लोग को स्कोप में से, हाँ क्या हुआ? सर उसमें सर प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट सर सेम ही करंट दिख रहा है सर, क्योंकि सर फॉल्ट के बाद जो है ट्रांजिएंट आता है सर, उसके बाद करंट का वैल्यू हाई ही ना रहता है। नहीं, यहाँ पे फॉल्ट, यहाँ पे तुम जो बोल रहे हो वो स्टेडी स्टेट फॉल्ट, उस समय फॉल्ट क्लियर नहीं हो। हम जो तुम लोग को मतलब उस समय हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि फॉल्ट सर्किट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना 0.06 समय पे फॉल्ट क्लियर हो गया है। फॉल्ट क्लियर हो गया है। क्लियर हो जाने के बाद इसीलिए प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पे जो हम लोग का फॉल्ट वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो हम टाइमिंग दिया है ना 1/50/3/50, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक इस चीज को कंसीडर कर रहा है कि फॉल्ट 1/50 पर स्टार्ट हुआ है और 3/50 पर फॉल्ट खत्म हो गया है। समझे? यस इसी करंट और पोस्ट फॉल्ट करंट दोनों का वैल्यू आ रहा है। हम उसका टाइमिंग नहीं देंगे। अगर वो फॉल्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो करंट का वैल्यू इतना ही रहेगा। तब धीरे धीरे मतलब लगभग एक अच्छा खासा वैल्यू रहेगा फॉल्ट करंट का, अगर वो फॉल्ट क्लियर नहीं होगा तो। लेकिन नॉर्मली हम लोग के आज के समय का जो पावर सिस्टम है, इसमें वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज which will trip the fault instantly, which will clear out the fault। इसीलिए MATLAB सिमुलेशन में जो फॉल्ट ब्लॉक है उसमें इन टाइम और आउट टाइम दोनों टाइम दिया हुआ है, ताकि फॉल्ट किस समय शुरू हुआ किस समय खत्म हुआ। अगर हमको अभी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आते हैं, अगर हम सबसे पहले सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, अगर हमको सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देखना है LG, उस केस में हम क्या करेंगे बोलो? बहुत आसान है। उस केस में हम क्या करेंगे बोलो? दो लाइन को अनटिक कर देंगे और ग्राउंड को टिक करेंगे। सिंगल ग्राउंड है तो ग्राउंड को हम टिक कर दिए। मान लो हम ए फेज में करना चाहते हैं तो बी और सी को हम टिक कर दिए, यानी ए टू ग्राउंड हो गया। समझे ना? इस तरह से हम लोग मतलब यही वाला फॉल्ट ब्लॉक है, ये 3 फेज फॉल्ट ब्लॉक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे 3 फेज फॉल्ट ही होगा। इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम करा सकते हैं, वो सिंगल लाइन हो, सिंगल लाइन टू ग्राउंड हो, या सिंगल डबल लाइन टू ग्राउंड। अब हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करेंगे। ए फेज को हम ग्राउंड कर दिए हैं, तो इस समय बताओ क्या होना चाहिए हम लोग का मुताबिक? इस समय क्या होना चाहिए? अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उस समय क्या होता है? सर बाकी दो फेज का करंट जीरो हो जाता अरे करंट 2 फेज का करंट जीरो काहे होगा? 3 फेज है, करंट जीरो। अरे तुम तो मैथमेटिकल वाला चीज बता, तो तुम उस चीज को बता रहा है जिस समय हम पढ़ाए थे सडन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑन अनलोड सिंक्रोनस जनरेटर। उस समय हम आईपी और आईसी का वैल्यू को जीरो किए थे। लेकिन अगर वो सिस्टम कनेक्टेड है, अगर सिस्टम कनेक्टेड है उस केस में, अगर सिस्टम कनेक्टेड है उस केस में हमारा सिर्फ एक फेज का फॉल्ट इंक्रीज करेगा, बाकी दोनों फेज का फॉल्ट एज यूजुअल रहेगा। क्योंकि हम लोग, जब तुम लोग याद करो, जब हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़े थे उस समय सिर्फ हम लोग फॉल्ट करंट ऑफ द ए फेज निकाले थे, बी और सी को हम लोग नहीं निकाले थे। है। यस 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 इसको हाँ, बोलो कुछ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, याद आ गया सर। हाँ, दो फेज का वही रहेगा सेम जब कनेक्ट याद आ गया, बोलने के बाद याद आ गया, पहले से। अब इसको रन करेंगे हम लोग। रन करने के बाद स्कोप में डबल क्लिक करेंगे, देखो कैसा वेवफॉर्म आया, देख रहा है? ये पहला वाला जो येलो कलर का फेज है, देख सकते हो, ऊपर वाला वोल्टेज का फेज है।
पहला वाला येलो कलर का फेज जो है, ए जो फेज है, उसी का जो करंट का वैल्यू इंक्रीज किया है, बी और सी में कोई असर नहीं पड़ा है। और यहाँ पे जो कि फॉल्ट टाइमिंग हम 1/50 और 3/50 दिए थे, इसीलिए 0.02 पर स्टार्ट हुआ और 0.06 पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। यही अगर हम बी में करेंगे, यही अगर हम लोग बी में करेंगे, बी टू ग्राउंड फॉल्ट करेंगे, उस समय देखो दूसरा कलर का, देखो देख रहे हो, वायलेट कलर का जो है वो वाला इंक्रीज हुआ है, बाकी ब्लू और येलो एज यूजुअल है। हम लोग यहाँ पे C2 करेंगे, C2 ग्राउंड फॉल करेंगे, तो तीसरा वाला फेज होगा। देखो यहाँ पे ब्लू वाला इंक्रीज किया है, वायलेट और येलो वाला एज यूजुअल है, ठीक है। और यहाँ पे फॉल करंट का पीक वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे फॉल करंट का पीक वैल्यू 24 एम्पियर्स के आसपास आ रहा है, ठीक है। अभी तुम लोग से हम एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल ये है कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो हम बता दिए, डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इफ द क्लास विल एंड, आंसर प्लीज स्टार्ट द क्लास अगेन। इस दोनों में पीक फॉल्ट करंट का वैल्यू, पीक फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या दोनों में बराबर होगा या फिर दोनों में अलग अलग होगा? क्या लगता है तुम लोग का क्या विचार है? कि अगर हम टू फेज फॉल्ट करेंगे, उस समय जो हम लोग का पीक करंट का वैल्यू जो अभी हम निकाले हैं 24 निकला है, वो अगर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में अगर जो निकलेगा और डबल लाइन फॉल्ट में जो निकलेगा, क्या वो दोनों का वैल्यू, पीक फॉल्ट का वैल्यू सेम होगा या फिर दोनों में डिफर करेगा? तुम लोगों का क्या विचार है इस क्वेश्चन में?